السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرا نام زبیر ہے۔ آج پھر سے میں آپ لوگوں کے لیے نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو ہم پارٹ 1 میں دیکھا تھا، ایک عیسائی نے اسلام کی اور قرآن کی جو غلطیاں نکالی، اور ہم پارٹ 2 میں دیکھیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کیسے اس غلطیوں کو صحیح کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب مسلمانوں کا سینہ ٹھنڈا ہوگا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک ہمیں بتائیں گے کیسے اسلام کی دفاع کی جاتی ہے۔ تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کیمبل، آپ کی خطاب دینے کا اب میرے بھائی سبیل احمد اگلے مقرر ڈاکٹر ذاکر نائک کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک ایسے صاحب علم و حکمت کا تعارف کرا رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک۔ ان کی عمر 34 سال ہے۔ آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن بامبے ہندوستان کے صدر ہیں۔ اگرچہ پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مقرر کے طور پر جانے جاتے ہیں جو اسلامی نقطہ نظر پیش کرنے میں کمال مہارت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کو رفع دفع کرتے ہیں۔ وہ دلیل، منطق اور سائنسی حقائق کے حوالے سے قرآن، حدیث اور اسی طرح دوسری مذہبی کتابوں میں پائے گئے شکوک و شبہات اور ابہام کو دور کرتے ہیں۔ وہ اپنے ناقدانہ تجزیوں اور خطابات کے بعد عوام کی طرف سے اٹھائے گئے مشکل ترین سوالات کے جوابات دینے کے لیے بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ ہندوستان میں بہت سے عوامی خطبات دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دنیا میں 700 سے زائد لیکچر دے چکے ہیں۔ انہوں نے اسلام اور تقابل ادیان پر کئی کتابیں لکھی ہیں، اور اسی طرح دیگر ممالک کے مختلف مذہبی اسکالرز کے ساتھ مل کر متعدد بحث و مباحثوں اور مذہبی مذاکروں میں شرکت فرما چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہم علی کل شیء شہید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ڈاکٹر ولیم کیمبل، ڈاکٹر مذاکر، ڈاکٹر جمال بدوی، بھائی سیمیول نعمان، ڈاکٹر محمد نائک، میرے محترم بزرگوں اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، سب کو اسلامی طریقے سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ سب پر۔ عنوان ہے آج کے مذاکرے کا قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ قرآن مجید حتمی اور آخری آسمانی کتاب ہے جو کہ بھیجی گئی اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کسی بھی کتاب کے لیے اگر اللہ کا کلام ہونے کا دعویٰ کیا جائے تو اس کتاب کو وقت کے امتحان کے معیار پر پورا اترنا چاہیے۔ پرانے زمانوں کا دور وہ معجزوں کا دور تھا۔ الحمدللہ قرآن پاک معجزوں کا معجزہ ہے، اور پھر ادب اور شاعری کا دور آیا، اور مسلم اور غیر مسلم مانتے ہیں قرآن پوری زمین پر پایا جانے والا عظیم ادبی شاہکار ہے۔ مگر آج کا دور تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم جدید سائنس سے ہم آہنگی رکھتا ہے یا کہ نہیں رکھتا۔ البرٹ آئنسٹائن نے کہا، سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے،
اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، بلکہ یہ تو صرف سائنس SIGNS یعنی علامات کی کتاب ہے، اور اس میں 6000 نشانیاں ہیں یعنی آیات، اور ان نشانیوں میں 1000 سے زیادہ نشانیاں سائنس سے متعلق ہیں۔ میں سائنس کے صرف ان حقائق کا تذکرہ کروں گا جو مسلم شدہ ہیں۔ میں قطعاً ان سائنسی مفروضوں یا نظریات کے متعلق بات نہیں کروں گا جو کسی ثبوت کے بغیر محض قیاس آرائیوں پر مبنی ہے، کیونکہ سائنس کو خود ہی متعدد مرتبہ اپنے آپ ہی کو خود بخود ہی جھٹلانا پڑا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل، جنہوں نے ڈاکٹر مورس بکاری کا حوالہ دیا قرآن اور بائبل تاریخ اور سائنس کی روشنی میں، وہ اپنی اس کتاب میں انداز کو 2 قسموں میں بتاتے ہیں۔ ایک ہے مطابقت والا، جس سے انسان کسی آسمانی کتاب اور سائنس کے درمیان موافقت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جبکہ دوسرا اندازہ ہے ٹکراؤ والا، جس میں انسان مساوی کتاب کے درمیان ٹکراؤ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر کیمبل نے یہ فرض نبھایا، لیکن جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، اس سے ہٹ کر کہ کوئی شخص موافقت کی راہ اپناتا ہے یا پھر تصادم کا راستہ، اگر آپ منطق پر کار فرما ہیں تو ایک برحق منطقی وضاحت دینے کے بعد کوئی ایک بھی شخص قرآن کی کسی ایک آیت کو بھی جدید سائنس کے ساتھ متصادم ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے تو قرآن کی کئی سائنسی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ میری یہ مکمل ذمہ داری ہے کہ میں ان الزامات کا مکمل طور پر جواب دوں۔ انہوں نے جو پہلے خطاب کرنے کو ترجیح دی، میں اپنی تقریر میں ان الزامات کو رد کروں گا۔ ان کی تقریر کے اہم حصے علم جینن اور علم ارضیات کے متعلق گفتگو کروں گا، اور میں انشاءاللہ دیگر امور پر دوران بحث اپنی معلومات کے مطابق دلائل دوں گا۔ میں نے دونوں کام نپٹانے ہیں، میں موضوع کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ آج کا موضوع ہے قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ میں ایک کتاب پر بات نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے تو بائبل کے 1 یا 2 نکات کا حوالہ دیا، مگر میں انشاءاللہ دونوں پر بات کروں گا۔ انشاءاللہ میں موضوع کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک قرآن کریم اور جدید سائنس کا تعلق ہے، ماہرین فلکیات نے دعویٰ کیا کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی، تو انہوں نے جانا ماہرین کے دیے گئے نام کے مطابق اسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کائنات گیس و غبار کا بادل تھا جو کہ بعد میں کسی بہت ہی بڑے دھماکے سے جدا ہوا، جس کی کہکشائیں ستارے، سورج، چاند اور یہ زمین ہے۔ یہی معلومات علم و حکمت سے بھرے قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں کہا گیا ہے، اولم یر الذین کفروا، کیا کافر نہیں دیکھتے، ان السماوات والارض تناظرتهم تقتهما، کہ آسمان اور زمین باہم جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں توڑ کر دو کر دیا۔ ان معلومات پر غور کریں جو اس دور میں منظر عام پر آئی ہیں، جن کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے کیا گیا ہے۔ جب میں اسکول میں تھا تو میں نے پڑھا کہ سورج زمین کے حوالے سے ساکن ہے، زمین اور چاند اپنے محور کے گرد گردش کرتے ہیں مگر سورج ساکن ہے۔ لیکن جب میں نے قرآن کی آیت کو پڑھا، لکھا تھا سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں لکھا ہے، هو الذی خلق اللیل والنہار، اللہ ہی ہے جس نے دن اور رات بنائے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے حساب مقرر سے چل رہا ہے۔ اب الحمدللہ جدید سائنس نے قرآن کے اس بیان کو ثابت کر دیا۔ عربی لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا وہ یسبحون ہے، جو کہ ایک متحرک شے کی حرکت کو بیان کرتا ہے۔ اس سے مراد آسمانی چیز لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آسمانی شے محوری گردش کر رہی ہے۔ قرآن بھی یہی بیان کرتا ہے کہ سورج اور چاند اپنے اپنے محور کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ آج کہیں جا کر معلوم ہوا کہ سورج تقریباً 25 دنوں میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ ایڈون ہیبل وہ شخص تھا جس نے دریافت کیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ قرآن سورہ زاریات میں کہتا ہے، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47، اور ہم نے ایک وسعت پذیر کائنات کو پیدا کیا ہے، خلا کی وسعت کے ساتھ۔
अरबी का लफ्ज मोसियोना अपने अंदर वुसअत यानी तौसीक का मतलब लिए हुए है। इल्म फल्कियात के हवाले से डॉक्टर विलियम कैम्बल ने जो तस्करा किया है मैं उसे रद्द करूंगा इंशाअल्लाह। पानी के दौर के मुतालिक डॉक्टर विलियम कैम्बल ने निशानदेही की है। यहां पर कुरान इस पानी के चक्कर को तफसील से बयान करता है। डॉक्टर कैम्बल ने तो सिर्फ 4 अवामिल बयान किए हैं। उन्होंने 4A और 4B पेश किया है, जबकि 4B की स्लाइड भी नहीं दिखाएगी, ना जाने क्यों। इसमें जिक्र है ट्रिप्लिनेशन का, पानी के जदवल का। शायद वो भूल गए हैं इसलिए कि बाइबल में इसका जिक्र नहीं है। इनका कहना है कुरान में एक भी आयत ऐसी नहीं जिसमें बुखरात का जिक्र हो। कुरान कहता है सूरह तारिक में सूरह नंबर 86 आयत नंबर 11, वजुद समा, आसमान के पलटने की सलाहियत के जरिए। तकरीबन सभी मुफस्सिरीन ने कहा है कि वो कहते हैं ये आयत जो कि सूरह तारिक की सूरह 86 आयत नंबर 11 में है, यानी कि आसमान को पलटने की सलाहियत बारिश का बाइस बनती है। बुखारात ही तो है। डॉक्टर विलियम कैम्बल जो अरबी जानते हैं कह सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया। वह समाए ज़ातिल मतर का मतलब है आसमान को पलटाने की सलाहियत बारिश का बाइस बनती है। अल्लाह ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया। आइए अब देखते हैं अल्लाह ने अपनी इस मसले का जिक्र क्यों नहीं किया। क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि जमीन के गिर्द ओजोन की तह बारिश के लौटाने के अलावा काफी कुछ फायदेमंद मादे और तवानाई भी बारिश के साथ मिलकर जमीन की तरफ वापस आते हैं, जिन सब की दुनिया में रहने वाले इंसानों को जरूरत है। बारिश ही जमीन की तरफ नहीं आती। आज हमें मालूम होता है यहाँ तक कि वो सारी लहरें जो टेलीफोन के निजाम को और टेलीविजन को, रेडियो को चलाती हैं, जिससे हम टीवी देखते हैं, हम राब्ता करते हैं, हम रेडियो सुनते हैं, और इसके अलावा यही तय बैरूनी खला की नुकसानदार शुआओं को पलटाती है और जज्ब भी करती है। मिसाल के तौर पर सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी की अल्ट्रावायलेट शुआएं आयनोस्फीयर में जज्ब हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो कुर्रे अर्ज पर जमीन का वजूद खत्म हो जाता। यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सच पर मबनी है फरमाता है वजह समा, आसमान के पलटने की सलाहियत के जरिए। और बाकी चीजों का मैं जिक्र करूंगा जो कुरान में है। इनके लिए आप मेरी सीरीज देख सकते हैं। कुरान ने पानी के दौर को बड़ी वजाहत से बयान किया है। उन्होंने जो भी कहा है बाइबल के हवाले से, उन्होंने पहला मरहला और तीसरा स्लाइड 1 में दिखाया, फिर दूसरी में पहला, तीसरा और फिर दूसरा, जिसमें पानी जमीन से ऊपर जाता है। वो कहते हैं और फिर बारिश का पानी जमीन पर बरसता है। ये फलसफा तो सेज ऑफ मिलिटस का है, 7वीं सदी ईस्वी से पहले का। उनका नजरिया था समुद्र के बुखारात को हवा ऊपर उठा लेती है और यही हवा बारिश बरसाती है, बादलों का कहीं जिक्र ही नहीं है। और दूसरा हवाला जो डॉक्टर विलियम कैम्बल ने दिया है, पहला है इनके मुताबिक बुखारात जो हम मानते हैं, हम बाइबल से मुताबिकत रखने वाले उमूर का बुरा नहीं मानते। पहले बारिश बरसती है और फिर जाकर बादल बनते हैं। ये तो पानी का मुकम्मल दौर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ने बड़ी तफसील से पानी के दौर के बारे में बताया है कई मुकामात पर। यानी पानी किस तरह ऊपर उठता है, बादल कैसे बनते हैं, बादल आपस में कैसे जुड़ते हैं, गरज चमक होती है, और फिर इस तरह से पानी बरसता है, बादल किस तरह हरकत करते हैं, बारिश की सूरत में बरसते हैं। बुखारात का जदवल बयान कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह तफसील के साथ। कुरान में पानी के इस दौर का जिक्र तफसील से किया गया है कई मुकामात पर। सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 43, सूरह रूम में सूरह नंबर 30 आयत नंबर 48, और सूरह अल-ज़ुमर में सूरह नंबर 39 आयत नंबर 21, सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 18, सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 24, सूरतुल हिजर सूरह 15 आयत नंबर 22, सूरतुल अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 57, और सूरतुल राइद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 17, सूरतुल फुरकान सूरह 25 आयत नंबर 48 से 49, सूरतुल फातिर सूरह 35 आयत नंबर 9, सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 34, और सूरह जासिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 5, सूरतुल काफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 9, सूरतुल वाक़िया सूरह नंबर 56 आयत नंबर 68-70 कई मुकामात पर, सूरतुल मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 30। कुरान करीम कई मुकामात पर पानी के दौर को तफसील से बयान करता है। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने बहुत सारा वक्त लिया, आधी तकरीर इल्म जनैन पर की, इल्म अर्जियात का जिक्र किया, और 6 दूसरे मौज़ूआत का जो मैंने दर्ज किए हैं। इल्म अर्जियात के बारे में तो हमें आज पता चल चुका है। इल्म अर्जियात हमें बताता है जैसा कि जमीन का निस्फ कुत्र तकरीबन 3750 मील पर है, और इसकी अंदरूनी तहें गर्म और माया हालत में है, जहां जिंदगी का वजूद बिल्कुल नहीं है, और
जमीन की बिल्कुल ऊपर वाली तह जहां हम रहते हैं, जो बहुत पतली है, खींचतान के 30 मील तक। कुछ तह सख्त है, लेकिन ज्यादातर 1 से 30 मील। और इसी बात से तो ये शदीद इम्कानात हैं कि ये सतह तो लरजने का बाइस है। इसकी सबसे बड़ी वजह तहों का हेर फेर है, जो पहाड़ी सिलसिले को ऊंचा करता है, जिससे जमीन को पुख्तगी मिलती है। कुरान कहता है सूरत नबा में, सूरह नंबर 78 आयत नंबर 6 से 7, हमने जमीन को वसी बनाया है, वल जिबाला औतादा, और पहाड़ों को मेखें बनाया है। कुरान कतन नहीं कहता पहाड़ों को मेखों की तरह फेंका गया, पहाड़ मेखों की तरह। अरबी का लफ्ज औताद यानी मेखें, खैमों की खूंटियां। और आज हमें पता चलता है इल्मे अर्जियात के मुताले से कि पहाड़ों की गहरी जड़ें होती हैं, और यह मामला 19वीं सदी के निस्फ में मालूम हुआ है। और हमें दिखाई देने वाले पहाड़ की सतह जमीन से ऊपर वाली सतह से कम होती है, जो जेरे जमीन गहराई तक होती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे खूंटियों को जमीन में गाड़ा जाए। आप सिर्फ ऊपर से छोटा हिस्सा देखते हैं, ज्यादातर जमीन के नीचे होता है। बिल्कुल ग्लेशियर की चोटी की तरह आप सिर्फ ऊपर की चोटी देखते हो, और उसका 90% हिस्सा पानी में होता है। कुरान कहता है सूरतुल गाशिया में सूरत नंबर 88 आयत नंबर 19, और सूरह नाजियात में सूरह नंबर 79 आयत नंबर 32, वल जिबाला अरसाहा, और पहाड़ों को जमीन में मजबूती से गाड़ दिया, पहाड़ों को जमीन से ऊंचा बनाया। आज जदीद इल्मे अर्जियात के उरूज के बाद, जो कि डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा, प्लेट टेक्नोमिक के नजरिए के तहत जो कि पेश किया गया 1960 में, पहाड़ी सिलसिलों के उभरने का जिक्र है। आज के माहिरीन तो ये तस्लीम करते हैं कि ये पहाड़ जमीन को मजबूत करते हैं। सारे माहिरीन नहीं, लेकिन कुछ कहते हैं। आज तक मेरी नजर में कोई ऐसी किताब नहीं गुजरी, और मैं डॉक्टर विलियम कैम्बल को खुला चैलेंज करता हूं कि वो इस सिलसिले में कोई ऐसी किताब दिखाएं, किसी माहिर अर्जियात के साथ जाती ताल्लुक न दिखाएं। ये नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर कीथ मोर की कही हुई बात सच्ची है या कोई सच्ची दस्तावेज है। और अगर आप किताब दी अर्थ का मुतालिया करें, जिसका हवाला इल्मे अर्जियात की कई यूनिवर्सिटीज ने दिया है, उसके लिखारियों में से एक, जिनका नाम डॉक्टर फ्रैंक प्रेस है, जो मुशीर था साबिका अमेरिकी सदर जिमी कार्टर का, एकेडमी ऑफ साइंस का सदर भी रह चुका है अमेरिका में, वो लिखता है कि पहाड़ खूंटी की शक्ल के होते हैं, और इनकी जड़ें तो जमीन की गहराई तक होती हैं, और पहाड़ का काम तो जमीन को इस्तेकाम देना है। और कुरान कहता है सूरतुल अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 31, और सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 10, और इसी तरह सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 15 में लिखा है, और हमने पहाड़ों को मजबूती से जमीन में खड़ा किया है, ताकि ना ये खुद हिले और ना ये तुम्हें हिलाए। अब हम आगे देखते हैं। पहाड़ का काम कुरान में यही बताया गया है कि वो जमीन को हिलने से बचाए। कुरान में ये कहीं नहीं लिखा कि पहाड़ जलजले को रोकते हैं। और डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा, उन्होंने अपनी किताब से पढ़ा कि अगर पहाड़ी इलाके को देखा जाए जहां जलजले आते हैं और पहाड़ उसकी वजह बनते हैं। अब जरा गौर कीजिए, कुरान में ये कहीं नहीं लिखा कि पहाड़ जलजलों को रोकते हैं। अरबी में जो लफ्ज जलजले के लिए यूज होता है, डॉक्टर कैम्बल अल्पी जानते हैं, यह है जिलजाल या जलजला। इन 3 आयात में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज जो मैंने कहा वो है तमीदा। तमीदा का मतलब है हिलाना, झुलाना या झूला देना। और कुरान कहता है सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 10 में, और इसी तरह सूरतुल नहल सूरह 16 आयत 15, हमने पहाड़ों को मजबूती से जमीन में खड़ा किया, ना कि ये खुद हिले ना तुम्हें हिलाए। ये है तमीदा बिकुम, ना ये तुम्हें हिलाए। इशारा है अगर यहाँ पहाड़ ना होते तो अगर तुम चलते, अगर तुम फिरते तो जमीन भी तुम्हारे साथ चलने फिरने लगती, अगर तुम झुकते तो जमीन भी तुम्हारे साथ झुक जाती। हमें पता है आमतौर पर जब हम जमीन पर चलते हैं तो वो नहीं लरजती। यही वो वजह है जो कि डॉक्टर फ्रैंक प्रेस और डॉक्टर नजात, जो कि सऊदी अरब में रहते हैं, और उन्होंने पूरी किताब लिखी है कुरान के नजरियाती अर्जियात के बारे में, और इसमें जवाब है तकरीबन डॉक्टर विलियम कैम्बल की हर बात का वजाहत के साथ। और डॉक्टर विलियम कैम्बल अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर पहाड़ जमीन को जलजले से बचाते हैं तो फिर पहाड़ी इलाकों में जलजले क्यों आते हैं? ये दरअसल सोचने की बात है। मैंने कहा कुरान में ये कहां लिखा है कि पहाड़ जलजले को रोकते हैं? जलजला यानी जिलजाल। अगर इसकी तारीफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखे तो लिखा है जलजला जमीन की बलाई सतहों के लर्जने से आता है, जलजले की मुकीद लहरों की वजह से। किसी चट्टान में इसका सबब कोई दरार वगैरह या किसी आतिश फिशा का रद्द अमल भी हो सकता है। कुरान में जलजले के बारे में लिखा है सूरह जिलजाल सूरह 99 में बयान किया गया है कि
तमीदा बिकुम, जमीन को तुम्हारे साथ रोकने के लिए। और इस बयान के जवाब में कि पहाड़ जलजले से बचाव का बाइस है, तो फिर पहाड़ी इलाकों में जलजले किस वजह से आते हैं? इसका जवाब है, अगर मैं कहूं कि एक मेडिकल डॉक्टर बचाता है इंसान को बहुत सारी लगने वाली बीमारियों से, और अगर कोई ये कह दे कि अगर डॉक्टर ही बचाते हैं लगने वाली बीमारियों से सब इंसानों को, तो फिर अस्पतालों में बीमार लोग क्यों पाए जाते हैं जहां पर घर की निस्बत ज्यादा डॉक्टर मौजूद होते हैं? समंदर के इल्म के बारे में कुरान करीम फरमाता है, सूरतुल फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 53 में है, ये अल्लाह ही है जिसने पानी के बहते हुए दो धारे बनाए, एक मीठे पानी के काबिल और दूसरा नमकीन और कड़वा। वो आपस में मिलते हैं लेकिन घुलते नहीं, इनके दरमियान एक रुकावट डाल दी गई है जो इनको घुलने नहीं देती। कुरान कहता है सूरह रहमान सूरह नंबर 55 आयत नंबर 19-20, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, ये अल्लाह ही है जिसने पानी के दो धारे आजाद छोड़ रखे हैं, वो आपस में मिलते हैं मगर घुलते नहीं, इनके दरमियान एक हद फासिल है जिसे अबूर करने की इजाजत नहीं। पहले हो सकता है कि मुतरजमीन का ख्याल हो कि कुरान की इससे मुराद क्या है। हम जानते हैं मीठा और नमकीन पानी क्या है, इनके दरमियान हद फासिल कैसी है और फिर ये घुल क्यों नहीं सकते। आज समुद्र के जदीद उलूम की वजह से ये हम जान गए हैं कि जब कभी पानी की एक किस्म दूसरी किस्म के साथ मिलकर बहती है तो वो अपनी इंफरादियत खो देती है, और जिस मुकाम पर इनका मिलाप होता है और एक तिरछा धारा उस जगह बन जाता है जिसको कुरान ने नाम दिया है बरज़ख, न दिखने वाली हद। इस मामले पर बहुत से साइंसदानों ने इत्तफाक किया है, यहाँ तक कि अमेरिका में जिनका नाम है डॉक्टर है, वो माहिर समंदर है, डॉक्टर विलियम कैम्बल अपनी किताब में लिखते हैं कि ये एक अजीबोगरीब वाकया है। उस दौर के मशीरों को पता था कि पानी की दो किस्में होती हैं, मीठा और नमकीन। सो हजरत मोहम्मद मुल्क के शाम के सफर के दौरान वहां समंदर में गए हो या वहां के मशीरों से बात की हो, मीठे और नमकीन पानी का वाकया वाकई अजीबोगरीब है, और लोगों को इल्म नहीं था कि कोई अंधे की हद फासिल है। जदीद साइंस के मुतालिक गौर व फिक्र की जरूरत है, यानी बरज़ख, ना कि मीठा या नमकीन पानी। इल्म जनैन के मुताबिक डॉक्टर विलियम कैम्बल ने अपनी तकरीर में आधे से ज्यादा वक्त इल्म जनैन पर सर्व किया है। वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा गैर मंतकी बातों के जवाबात के लिए, मैं सिर्फ एक तसल्ली बख्श जवाब दूंगा, हम मुतमईन होंगे इंशाअल्लाह। मजीद तफसील के लिए आप मेरी वीडियो कैसेट कुरान और जदीद साइंस और कुरान और मेडिकल साइंस मुलाजा कर सकते हैं। एक अरबों का ग्रोह था, उन्होंने बहुत सारा मवाद जमा किया कुरान की रूह से इल्म जनैन के मुतालिक और हदीस इल्म जनैन के मुतालिक, और भेज दी प्रोफेसर कीथ मोर को, जो थे चेयरमैन और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में। और आजकल वो एक नुमाया तरीन साइंसदानों में से एक हैं जो कि महारत रखते हैं इल्म जनैन पर। और बेशतर कुरान के तराजिम पढ़ने के बाद उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अक्सर व बेशतर कुरान और हदीस की रिवायात जदीद इल्म जनैन से मुताबिकत रखती हैं, लेकिन कुछ आयात ऐसी हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूं ये सही हैं, कुछ के बारे में मैं कह सकता हूं ये गलत है, क्योंकि मुझे खुद भी इसके बारे में पता नहीं। और दो ऐसी आयात, पहली कुरानी वही की दो आयात हैं, सूरह इकरा और सूरह अलक से, सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1-2 में कहा गया है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, पढ़ अपने उस रब के नाम से जो पैदा करने वाला है, जिसने इंसान को पैदा किया चिपकने वाली चीज या जोंकनुमा जमे हुए खून के लोथड़े से। और यहां पर डॉक्टर विलियम का कहना है कि किसी लफ्ज को परखने के लिए हमें देखना होगा कि इसके क्या क्या मतलब थे, और जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ उस वक्त इस लफ्ज के क्या मानी थे। यहां उन्होंने कहा हमें तज्जिया करना चाहिए। जब इसके मतलब कहा तज्जिया किया जाए कि जब आयात नाजिल हुई और जिन पे नाजिल हुई उनके नजदीक मानी क्या थे। और जहां तक तो इनकी बाइबल का ताल्लुक है, बाइबल ही की रूह से मैं इससे मुकम्मल इत्तफाक करूंगा, क्योंकि बाइबल का खिताब सिर्फ औलाद इजराइल से था उस दौर में, उस वक्त, जो कि मती की अंजील में लिखा गया है, बाब नंबर 10 आयत नंबर 5 और 6। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकारों से फरमाया, जाओ मगर सामरियों की तरफ ना जाना। वो सामरी कौन थे? गैर यहूदी, हिंदू, मुस्लिम, बल्कि तुम जाओ इसराइल के घराने की गुमशुदा भेड़ों के पास। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मती की अंजील में बाब नंबर 15 आयत नंबर 24 में है, मैं नहीं भेजा गया मगर इसराइल की खोई हुई भेड़ों की तरफ। बस मालूम हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इंजील सिर्फ इसराइल की औलाद से ताल्लुक रखते थे। इंजील के तस्दीक के लिए आपको वही मानी अपनाने पड़ेंगे जो उस दौर में समझे गए थे।
पर कुरान उस दौर में अरबों के लिए ही नहीं भेजा गया था, कुरान मुसलमानों के लिए ही नहीं भेजा गया, कुरान भेजा गया है तमाम इंसानों के लिए। और ये भेजा गया अजल से अबद तक के लिए। कुरान कहता है सूरतुल इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52, सूरतुल बकरा सूरह 2 आयत 185 और सूरह जुमर सूरह 39 आयत 41 में इरशाद है कुरान तमाम बनी नौ इंसान के लिए है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों के मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे। अल्लाह कुरान में कहता है सूरतुल अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है, एक रहबर के तौर पर पूरी इंसानियत के लिए। इसलिए जहां तक कुरान का ताल्लुक है आप महदूद नहीं कर सकते कुरान का मतलब सिर्फ उस वक्त के लिए, क्योंकि यह भेजा गया अजल से अबद तक के लिए। अलका के मानी में से एक मानी है एक चिमटने वाली चीज या जोकनुमा चीज। प्रोफेसर कीथमोर कहते हैं मुझे तो इल्म ही नहीं था, जनैन इब्तदाई मरहले पर एक जोंक जैसा दिखता है। वो अपनी लेबोरेटरी में गए और तजिया किया खुर्दबीन से जनैन के इब्तदाई मरहले का, फिर जोंक की तस्वीर से मुआजना करके देखा और वो दोनों की हैरानकुन मुशाबियत देखकर दंग रह गया। ये रही तस्वीर एक जोंक की और इंसानी जनैन की। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने जो कुछ दिखाया है ये तो उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर है। अगर मैं किताब को दिखाऊं तो ये तिरछी दिखेगी, अगर मैं इस तरह दिखाऊं तो यहां मंजर कुछ और होगा। वो सूरत किताब में दी गई है और वो सूरत जो स्लाइड में दिखाई गई है वो भी मौजूद है, मैं इसे निपटूंगा इंशाअल्लाह। प्रोफेसर कीथमोर ने 80 सवालात पूछे जाने के बाद कहा, उसने कहा अगर आप ये 80 सवालात 30 साल पहले पूछते तो मैं मुश्किल से कुछ का जवाब दे पाता, यानी मैं 50% ही जवाब दे पाता, क्योंकि इल्मे जनैन ने तो सिर्फ पिछले 30 साल के दौरान ही तरक्की की है। उन्होंने 80 की दहाई में कहा। तो आइए डॉक्टर कीथमोर की ही बात को मानते हैं, जिसकी तहरीर और सीडी बाहर हॉल में दस्तयाब है, वहां वीडियो कैसेट्स भी हैं। यही वो सच है अनाउल हक, ये सच तहरीर है। क्या आप डॉक्टर विलियम कैम्बल की डॉक्टर कीथमोर से खालिसतन जाती गुफ्तगू पर यकीन करेंगे, या जो कुछ इस किताब में दर्ज किया गया है बिमा इसके इस्लामिक एडिक्शन और उन तस्वीर के साथ जो आपको दिखाई है, और जो सीडीज बाहर दस्तयाब है उनमें भी आप देख सकते हैं। उन्होंने ये बयानात दिए हैं, बस आपने सोच समझकर सही बात का इंतखाब करना है। डॉक्टर विलियम कैम्बल के साथ उसकी जाती नैयत की गुफ्तगू ऐसे ही है जैसे उन्होंने मेरी सीडी दिखाई। ये मेरे बयान का 100% सबूत है। चांद रोशनी मुनक्किस करता है, मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। और जो इजाफी मालूमात इन्होंने हासिल की कुरान और हदीस से, वही बाद में इनकी किताब जिसका नाम है डेवलपिंग ह्यूमन द 3rd एडिशन, इस किताब ने अवार्ड लिया एक बेहतरीन तिब्बी किताब का, जो उस साल अकेले मुसन्निफ ने लिखी। ये इसका इस्लामिक एडिशन है जो कि पेश किया शेख अब्दुल मजीद जिंदानी ने, और उसकी तस्दीक की डॉक्टर कीथमोर ने खुद। कुरान कहता है सूरतुल मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 13 और सूरतुल हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5 में, और इसके अलावा 11 जगहों पर कुरान में कहा गया है कि तमाम इंसान बने हैं नुत्फे से, माया की थोड़ी सी मिकदार से, जैसे एक प्याले में कतरे जैसी मिकदार। नुत्फा अरबी में थोड़ी सी मिकदार को कहते हैं। आज हमें पता चलता है कि एक कतरा मादा मनीविया में तकरीबन कई मिलियन नुत्फे पाए जाते हैं। सिर्फ एक चाहिए होता है वेदे को बराबर करने के लिए, जिसे कुरान ने कहा है नुत्फा। कुरान कहता है सूरतुल सजदा सूरह 32 आयत नंबर 8 में, हमने बनी नो इंसान को सलाला से बनाया है, जिसका मतलब है कुल का बेहतरीन जुज। सिर्फ एक नुत्फा बराबर करता है बेदे को तकरीबन कई मिलियन नुत्फों से, जिसे कुरान असलाला कहता है, कुल का बेहतरीन जुज। कुरान कहता है सूरतुल इंसान में सूरह 76 आयत नंबर 2, हमने बनी नो इंसान को बनाया नुत्फतुम अमशाद से, मखलूक माया की एक बहुत ही कलील मिकदार। इसका मतलब है नुत्फा और इसी तरह बेजा दोनों ही चाहिए होते हैं बराबरी के लिए। कुरान करीम ने तो जनैन के मुख्तलिफ मराहिल को निहायत उम्दगी से बयान किया है, जिन के मुतालिक स्लाइड्स आपको दिखाई गई। ये मौजू मुकम्मल करने में डॉक्टर विलियम कैम्बल ने मेरी मदद की। सूरतुल मोमिनीन सूरह नंबर 23 आयत नंबर 12 से 14 में जो कहा गया उसका तर्जुमा यह है कि
ہم نے بنی نوع انسان کو بنایا نطفے سے، مایا کی ایک قلیل مقدار. ہم نے اسے قرار مقیم میں رکھا یعنی کہ محفوظ مقام، اور پھر ہم نے اسے بنایا علقہ یعنی جوک نما ایک چیز، لوتھڑے جیسا جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا. پھر ہم نے علقہ سے بنایا مدغہ یعنی جو گلی کیا ہوا گوشت. پھر ہم نے مدغہ سے بنایا عظامہ ہڈیاں، اور ہڈیوں کو ڈھک دیا لحم سے یعنی گوشت. اور ہم نے ایک نئی مخلوق تخلیق کی. پاک ہے وہ ذات جو بہترین تخلیق کرنے والی ہے. قرآن کریم کی یہ 3 آیات علم جنین کے مختلف مراحل کو مفصل انداز میں بیان کرتے ہیں. پہلے نطفہ، ٹھہرانا محفوظ مقام پر، تبدیل ہونا علقہ میں. علقہ کے 3 مطلب ہے. ایک ہے چپکنے والی چیز، اور ہم جانتے ہیں کہ شروع کے مراحل میں وہ چپک جاتی ہے دیوار رحم کے ساتھ اور مسلسل چپکی رہتی ہے آخر تک. اب دوسرا مطلب، اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ کوئی جونک نما چیز، جو کہ شروع میں نے بتایا کہ جنین ابتدائی مراحل میں ایک جونک جیسا دکھتا ہے. جونک جیسا دکھنے کے علاوہ وہ کام بھی جونک جیسا کرتا ہے. یہ اپنی ماں سے خون چوسنے والی جونک کی طرح خون حاصل کرتا ہے. اور اس کا تیسرا مطلب جس پر ڈاکٹر ولیم کیمبل نے اعتراض کیا وہ بالکل درست معنی ہے، جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا. تو اس وجہ سے قرآن سائنسی غلطی پر ہے. میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ڈاکٹر ولیم کیمبل ایسا نہیں سمجھتے. انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب جمے ہوئے خون کا لوتھڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو قرآن غلطی پر ہے. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں قرآن غلط نہیں ہے. ڈاکٹر ولیم کیمبل کی خدمت میں عرض ہے وہ غلط ہے. کیونکہ آج علم جنین کی ترقی کے بعد یہاں تک کہ ڈاکٹر کیتھ مور کہتے ہیں یعنی کہ ابتدائی مراحل میں یہ جنین جونک جیسا دکھائی دینے کے ساتھ جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا بھی دکھائی دیتا ہے. کیونکہ شروع کے مراحل میں یعنی علقہ کے مرحلے میں 3 سے 4 ہفتوں کے دوران خون ایک بند تھیلی میں جم جاتا ہے. اور ڈاکٹر ولیم کیمبل نے میرے لیے آسان کر دیا سلائیڈ دکھا کر. یہ آپ کے لیے دیکھنا تو مشکل ہوگا لیکن یہ وہ سلائیڈ ہے جو انہوں نے آپ کو دکھائی. یہی بات یقیناً پروفیسر کیتھ مور بھی کہتے ہیں. یہ جمے ہوئے خون جیسا دکھتا ہے. اس بند تھیلی میں خون جمع ہوا دکھتا ہے اور تیسرے ہفتے کے دوران جنین کا خون گردش نہیں کرتا کیونکہ یہ بعد میں شروع ہوتا ہے، اس لیے یہ جمے ہوئے خون کا لوتھڑا ہی دکھتا ہے. اور اگر آپ تمام حضرات مشاہدہ کریں اس حمل کے بعد کے مرحلے کا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوتھڑے جیسا دکھتا ہے. صرف ایک لائن میں جواب دینا ہی بہتر ہوگا ان تمام اعتراضات کا جو ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کیے ہیں. وہ ہے یہ مراحل جو کہ قرآن میں ہے اس میں صرف اور صرف جنین کے مراحل ظاہری بنیاد پر دکھائے گئے ہیں. یعنی کہ پہلے علقہ کی ظاہری صورت ایک جونک نما چیز، پھر اسی طرح جمے ہوئے خون کا لوتھڑا. اور ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا کچھ خواتین آ کر کہتی ہیں لوتھڑا نکال دیجئے. یہ واقعی لوتھڑے جیسا نظر آتا ہے اور مراحل کی بنیاد نظر آنے والی صورت پر یہ ہے. انسان ایک ایسی چیز سے بنا ہے جو کہ لوتھڑے کی صورت ہے، جو کہ جونک کی صورت ہے، اور یہ اسی طرح چمٹنے والی چیز جیسی ہے. قرآن میں ذکر ہے ہم نے علقہ سے مدغہ بنایا جو گالی کیے ہوئے گوشت جیسا. پروفیسر کیتھ مور نے پلاسٹک کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے دانتوں میں چبا کر مدغہ جیسا دکھائی دینے والا بنایا. دانتوں کے نشانات اعضاء جیسے دکھائی دیتے ہیں. ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا جب علقہ مدغہ بن جاتا ہے چپکنے کی صلاحیت تب بھی ہوتی ہے، یہ آدھے مہینے سے بھی زیادہ تک رہتی ہے. تو قرآن غلط ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا قرآن ظاہری صورت بیان کر رہا ہے. جوک نما ظاہری صورت، لوتھڑے جیسی ظاہری صورت، یہ چبائے ہوئے گوشت کی صورت بدل جاتی ہے. یہ آخری دم تک چپکی رہتی ہے، اس میں تضاد نہیں. مرحلوں کی تقسیم ظاہری صورت کے حوالے سے ہے، کام کے حوالے سے نہیں. اس کے بعد قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے مدغہ سے عظامہ یعنی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں کو ڈھک دیا گوشت سے. ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہڈیوں اور عضلات کا مادہ ایک وقت میں بننا شروع ہوتا ہے، وہ ہے ہڈیاں. یہ اکٹھے بنتے ہیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. آج علم جنین بتاتا ہے کہ 25ویں سے 40ویں دنوں کے درمیان ہی ہڈیوں اور عضلات کا بنیادی مادہ بننا شروع ہو جاتا ہے. قرآن مدغہ کے مرحلے کے بارے میں اسی کا ذکر کرتا ہے، لیکن ان کی نشو و نما نہیں ہوئی، یہ منزل طے نہیں ہوئی. بعد میں 7ویں ہفتے کے اختتام پر جنین انسان کی ابتدائی شکل اختیار کرتا ہے، پھر جا کر ہڈیاں بنتی ہے. آج جدید علم جنین بتاتا ہے ہڈیاں بنتی ہے
42वें दिन के बाद, और एक ढांचा नुमा जाहिरी सूरत दिखाई देती है। इस मौका पर जब हड्डियां बन रही होती हैं, उजलात नहीं बनते। बाद में जाकर 7वें हफ्ते के बाद और फिर जाकर 8वें हफ्ते में उजलात बनते हैं। कुरान करीम ये मौक़िफ़ बयान करने में बजा है, पहले अलका, फिर मुदगा, फिर उदामा, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया जाना। और जब ये बनते हैं, और ये बयान बिल्कुल ठीक है, जैसा कि प्रोफेसर कीथ मोर कहते हैं कि जदीद इल्म जनैन मराहिल को कुछ इस तरह बयान करता है कि मरहला 1, 2, 3, 4, 5 ये हैरान कुन है। कुरान करीम में बयान करदा मराहिल जनैन की जाहिरी सूरत और शबाहिद की बुनियाद पे फोकियत और अहमियत के हामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए उसने कहा, मुझे ये तस्लीम करने पर कोई एतराज नहीं है कि हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और कुरान मजीद अल्लाह की नाजिल करदा मुकद्दस किताबों में से एक किताब है। प्रोफेसर तगड़ा तकाशान, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एनाटॉमी के एक चियांग माई यूनिवर्सिटी थाईलैंड में, सिर्फ इसी एक आयत की बुनियाद पर उन्होंने बरमला गवाही दी 8वीं मेडिकल कॉन्फ्रेंस रियाद में, और कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने गुफ्तगू का आगाज किया कुरान करीम की इन आयात से, सूरह फुसिलत सूरह 41 आयत नंबर 53 से, सानुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अंफुसिहिम हत्ता यतबैना लहुम अन्नहु ला अवलम यक्फी बिरब्बिका अन्नहु ला कुल्ली शैइन शहीद। जल्दी हम इनको अपनी निशानियां दिखाएंगे उफ़क़ के दूर दराज मुकामात तक, और इनकी अपनी जातों के अंदर, यहां तक के सच वाज़े हो जाए। ये एक आयत काफी थी सबूत के लिए डॉक्टर तगड़ा तकाशान को कि कुरान एक मुकद्दस किताब है। शायद किसी को 10 निशानियां चाहिए, कुछ को चाहिए 100, हो सकता है कुछ को 1000 निशानियां मिलने के बाद भी वो हक को तस्लीम न करें। कुरान इन लोगों को कहता है, सूरतुल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 18 में, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहम ला यरजून, गूंगे, बहरे, अंधे और ये सच को नहीं पहचान सकते। बाइबल भी यही कहती है मत्ती की अंजील में बाब नंबर 13 आयत नंबर 13, ये देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, और ना ही ये समझेंगे। और जनैन के दूसरे मराहिल के एतराज़ात का वाजिया जवाब दूंगा इंशाअल्लाह, अगर वक्त ने इजाजत दी। मुझे दूसरे हिस्सों के साथ भी इंसाफ करना है, यानी बाइबल साइंस की रोशनी में का। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि कुरान कहता है सूरतुल रोयत सूरह 13 आयत नंबर 38 में कि हमने कई इल्हामी किताबें नाजिल की हैं। नामों से सिर्फ 4 ही किताबें हैं, तौरात, जबूर और अंजील और कुरान। और तौरात उस वही पर मुश्तमिल है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, और जबूर जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, और अंजील जो उस वही पर मुश्तमिल है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। और कुरान आखिरी और हतमी किताब है जो आखिरी और हतमी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। मैं आपको बात वाज़ेह कर दूं आप तमाम को कि ये बाइबल जिसे ईसाई मानते हैं खुदा का कलाम, ये वो इंजील नहीं है जिसे मुसलमान मानते हैं जो नाजिल की गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। ये बाइबल हमारे मुताबिक हो सकता है खुदा का कलाम हो, लेकिन इसमें दीगर अंबिया कलाम के अल्फाज हैं, मौरखों के अल्फाज भी, इसमें लग़वियात भी हैं। इसके अलावा अनगिनत साइंसी गलतियां भी पाई जाती है। जी हां, साइंसी गलतियां। अगर बाइबल में चंद साइंसी उमूर का जिक्र है तो यह कौन सी हैरानगी की बात है? शायद खुदा के कलाम का कुछ हिस्सा हो बाइबल में, लेकिन साइंसी गलतियों के बारे में क्या ख्याल है? गैर साइंसी गलतियों के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसका जिम्मेदार खुदा है? मैं यहां पर वादे कर देना चाहता हूं मेरे ईसाई भाइयों और बहनों को, मेरे इस किताब बाइबल और साइंस के उन्वान का मकसद किसी भी ईसाई के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है।
اگر اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچے تو میں آپ سے پیشگی معذرت خواہ ہوں. میرا مقصد تو صرف نشاندہی کرنا ہے کہ خدا کا کلام سائنسی غلطی کبھی نہیں کر سکتا. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سچ کی تلاش کرو, سچ تمہیں آزاد کر دے گا. ہمارے پاس پرانا عہد نامہ ہے, ہمارے پاس نیا عہد نامہ ہے. اب آپ کو آخری اور حتمی عہد نامے پر عمل کرنا چاہیے جو ہے قرآن مجید. اور جہاں تک ڈاکٹر ولیم کیمبل کا تعلق ہے, میں ان کے ساتھ بے تکلف ہو سکتا ہوں کیونکہ انہوں نے کتاب لکھی قرآن بائبل سائنس کی روشنی میں. انہوں نے تقریر بھی کی ہے اور وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں. ان کے ساتھ مجھے زیادہ رسمی تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک دوسرے عیسائی بہن بھائیوں کا تعلق ہے, میں معذرت چاہوں گا اگر جذبات کو ٹھیس پہنچے میرے اس کتاب میں. آئیے پرکھیں کہ جدید سائنس کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے. پہلے علم فلکیات کو لیتے ہیں. بائبل کائنات کی تخلیق کے بارے میں کہتی ہے. شروع میں, بالکل شروع میں, پہلی کتاب پیدائش کی کتاب پہلے باب میں لکھا ہے, وہاں پر ہے سب سے بڑے خدا نے بنایا آسمان و زمین 6 دنوں میں, اور یہ بیان کرتی ہے شام کو اور صبح کو. اس سے مراد 24 گھنٹے کا دن ہے. آج کے سائنسدان بتاتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق 24 گھنٹے والے 6 دنوں میں بالکل نہیں تخلیق پا سکتی. قرآن بھی بات کرتا ہے 6 ایام کے بارے میں. عربی لفظ واحد ہے یوم, جمع ہے ایام. اس کا مطلب دن بھی ہو سکتا ہے 24 گھنٹوں والا, یا پھر یہ لمبے عرصے تک بھی محیط ہو سکتا ہے, یہ ایک یوم بھی ہو سکتا ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں, ہم متفق ہے کہ کائنات پیدا کی گئی ہو سکتی ہے 6 بڑے لمبے عرصوں میں. دوسرا نقطہ, بائبل کہتی ہے پیدائش کی کتاب باب نمبر 1 آیت 3 اور 5 روشنی پہلے دن پیدا کی گئی تھی. پیدائش کا پہلا باب 14 سے 19 آیت. روشنی کا ذریعہ ستارے اور سورج وغیرہ چوتھے دن تخلیق کیے گئے تھے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ روشنی کے ذریعے تو چوتھے دن پیدا کیے گئے ہوں اور روشنی پہلے دن پیدا کی گئی ہوں؟ یہ تو قطعاً غیر ایسی بات ہے. آگے بائبل کہتی ہے پیدائش کے پہلے باب میں 9 سے 13 آیات میں زمین بنائی گئی تھی تیسرے دن. رات اور دن کیسے بنائے گئے؟ زمین کے بغیر, کیونکہ دن کا انحصار تو زمین کی گردش پر ہے. زمین کے بغیر رات اور دن کیسے بن گئے تھے؟ چوتھا نقطہ, پیدائش کی کتاب باب نمبر 1 9 سے 13 آیات میں ہے زمین تیسرے دن پیدا کی گئی تھی. پیدائش کے پہلے باب 14 سے 19 آیت میں ہے سورج اور چاند چوتھے دن بنائے گئے تھے. آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین اپنے بنیادی جز سورج ہی کا حصہ ہے. وہ سورج کے بغیر مارز وجود میں نہیں آ سکتی. یہ بھی غیر سائنسی بات ہے. پانچواں نقطہ, بائبل کہتی ہے پیدائش کے پہلے باب میں 11 سے 13 آیات میں سبزیاں, جڑی بوٹیاں, جھاڑیاں, درخت یہ سب بنائے گئے تھے تیسرے دن کے اندر. اور سورج پیدائش کا پہلا باب 14 سے 19 آیات میں بنایا گیا تھا چوتھے دن. سبزات سورج کے بغیر مارز وجود میں کیسے آ سکتا ہے, اور وہ سورج کے بغیر کیسے نشو و نما پا سکتا ہے؟ چھٹا نقطہ کہ بائبل کہتی ہے پیدائش کا پہلا باب 16ویں آیت میں کہ خدا نے بنائی 2 روشنیاں, بڑی روشنی سورج دن کو چلانے کے لیے اور چھوٹی روشنی چاند رات کو چلانے کے لیے. اگر ہم عبرانی زبان کی لکھائی کا ترجمہ کریں تو مطلب ہے چراغ, ایسے چراغ جن کی اپنی اپنی روشنی ہے. اور اب آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اگر آپ بائبل کی آیات پڑھیں. پیدائش کا پہلا باب 16ویں آیت اور 17ویں آیت. 17ویں آیت میں ہے کہ خدا نے زمین پر روشنی ڈالنے کے لیے انہیں آسمان کی گنبد پر رکھا ہے. زمین کو روشنی دیتے ہیں. اشارہ ہوتا ہے کہ چاند اور سورج کی اپنی اپنی روشنی ہے, جو ہماری تصدیق شدہ سائنسی علم کے بالکل ہی الٹ ہے. کچھ صلح پسند لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جن 6 دنوں کا ذکر ہے بائبل میں دراصل وہ طویل دورانیہ جو قرآن میں ہے لمبا عرصہ 24 گھنٹوں والے 6 دن نہیں. یہ غیر منطقی بات ہے. بائبل پڑھیے, شام صبح یہ تو 24 گھنٹوں کی نشاندہی کرتے ہیں. لیکن اگر میں موافقت کا رستہ اپنا لوں تو کوئی بات نہیں. میں آپ کے غیر منطقی دلائل کو اپنا بھی لوں تو پھر بھی آپ 6 دن کی تخلیق کے حوالے سے صرف ایک غلطی کا حل نکال سکتے ہیں, اور دوسری پہلے دن روشنی اور تیسرے دن زمین. بقیہ 4 غلطیوں کو پھر بھی حل نہیں کر سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر اس سے مراد 24 گھنٹوں کا دن ہے تو سبزیاں نشو نما کیوں نہیں پا سکتی 24 گھنٹوں کے ایک دن میں سورج کے بغیر؟ میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہتے ہو کہ تمام سبزیاں بن گئی تھی سورج سے پہلے اور وہ 24 گھنٹوں کے ایک دن میں زندہ رہ سکتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 6 دن 24 گھنٹوں پر مشتمل ہے یا طویل دورانیے پر. دونوں باتیں یکجا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ طویل دورانیہ ہے، پہلا اور تیسرا مسئلہ تو حل کر سکتے ہیں، مگر باقی 4، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ 24 گھنٹوں والے دن ہیں، آپ صرف 5ویں مسئلے کو حل کر پائیں گے، بقیہ 5 وہی رہیں گے. یہ معاملہ بھی غیر سائنسی ہے. میں ڈاکٹر ولیم کیمبل پہ چھوڑتا ہوں، چاہے آپ اسے طویل دورانیے کا کہیں اور چاہے آپ اسے 4 سائنسی غلطیاں کہیں یا چاہے آپ اسے 24 گھنٹوں والا دن کہیں. یہاں صرف 5 سائنسی غلطیاں ہیں کائنات کے بنانے میں. زمین کی تخلیق کے متعلق یہاں پر کئی سائنسدانوں نے قیاس آرائیاں کی ہیں کہ دنیا کا خاتمہ کیسے ہوگا. سائنسدانوں کی یہ قیاس آرائیاں کچھ درست بھی ہو سکتی ہے، کچھ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یا تو دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا یا پھر دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ بھی غیر سائنسی ہے، لیکن بائبل میں تو یہی بیان کیا گیا ہے. یہ بائبل میں لکھا ہے عبرانیوں کی کتاب باب نمبر 1 آیت نمبر 10 اور 11 میں، اور زبور کی کتاب زبور نمبر 102 آیت نمبر 25 اور 26 میں کہ خدا نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا اور وہ ختم ہو جائیں گے. اس سے متضاد بات بھی بیان ہے جو ہے وائس کی کتاب میں باب نمبر 1 آیت نمبر 4 اور زبور کی کتاب میں زبور نمبر 78 آیت نمبر 69 میں ہے کہ زمین ہمیشہ قائم رہے گی. میں ڈاکٹر ولیم کیمبل پر چھوڑتا ہوں کہ وہ فیصلہ کریں ان میں سے کون سی آیات غیر سائنسی ہیں، پہلی 2 یا دوسری 2. ایک غیر سائنسی ہو چکی ہے. 2 باتیں نہیں ہو سکتی کیونکہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور اسی طرح ختم بھی ہو جائیں گی. یہ غیر سائنسی بات ہے. آسمان کے متعلق کہا گیا، بائبل کہتی ہے ایوب کی کتاب باب 26 آیت 11 میں آسمان کے ستون لرزیں گے. قرآن کہتا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں کہ آسمان بغیر ستونوں کے بنایا گیا. کیا تم نہیں دیکھتے؟ تم نہیں دیکھتے کہ آسمان بغیر ستونوں کے بنایا گیا ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ آسمان کے ستون ہیں. صرف یہی نہیں کہ آسمان کے ستون ہیں، بائبل کہتی ہیں پہلے سیموئیل کی کتاب میں باب نمبر 2 آیت نمبر 8 اور اسی طرح ایوب کی کتاب باب نمبر 9 آیت نمبر 6 اور زبور کی کتاب زبور نمبر 75 آیت نمبر 3 میں حتیٰ کہ زمین کے بھی ستون ہیں. خوراک اور غذا کے شعبے میں دیکھتے ہیں کہ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. بائبل کہتی ہے پیدائش کی کتاب باب نمبر 1 آیت نمبر 29 میں کہ خدا نے تمہیں دی تمام جڑی بوٹیاں اور بیج، بہت سے پھلدار درخت ایسے کہ جن کا بیج تمہارے لیے گوشت ہو. نئی بین الاقوامی ارشاد کہتی ہے بیج والے پودے اور پھلدار درخت پھل دیتے ہیں، بیج دیتے ہیں تم سب کے لیے، سب کے سب. آج یہاں تک کہ عام آدمی جانتا ہے کہ یہاں کئی زہریلے پودے ہوتے ہیں جیسا کہ وائلڈ بیریز، سٹرچنیز، دتورا، وہ پودے جن میں تضابیت ہوتی ہے، اولیانڈا، باقائی پوائلٹ، جو ایسے ہیں کہ انہیں ہضم کریں یعنی کھائیں قوی امکان ہے کہ آپ مر جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان اور کائنات کو بنانے والا یہ نہ جانتا ہو کہ ان کو کھانے سے وہ مر جائیں گے؟ میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ولیم کیمبل اپنے مریضوں کو جڑی بوٹیاں والی کوئی خوراک نہیں دیتے ہوں گے. بائبل میں ایک سائنسی آزمائش ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا سچے ماننے والے کا؟ یہ ذکر ہے مرکز کی انجیل میں باب نمبر 16 آیت نمبر 17 اور 18. وہ کہتا ہے کہ سچے ماننے والوں کی کچھ نشانیاں ہوں گی اور ان میں سے چند نشانیاں یہ ہوں گی، یعنی میرے نام سے وہ شیطان کو مار بگائیں گے، وہ لوگ غیر ملکی زبانیں بولیں گے، نئی زبانیں، وہ اژدہے قابو کریں گے، اگر وہ مرنے والا زہر بھی پیئیں گے تو وہ مریں گے نہیں، اگر وہ اپنا ہاتھ بیماروں پہ رکھیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ایک سائنسی آزمائش ہے. سائنسی اصطلاح میں اسے کسی سچے اور مومن عیسائی کی پرکھ کے لیے تصدیقی آزمائش کہا جاتا ہے. میری زندگی کے پچھلے 10 سالوں میں ہزاروں عیسائیوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرے ذاتی تعلقات ہے مبلغین کے ساتھ بھی. مجھے ابھی تک ایک بھی ایسا عیسائی نہیں ملا جو کہ بائبل کی اس تصدیق کرنے والی آزمائش پر پورا اترتا ہو، اور مجھے ابھی تک ایسا ایک بھی عیسائی نہیں ملا جس نے زہر پیا ہو. ایک بھی عیسائی ایسا نہیں، وہ زہر پیے اور وہ مرے نہیں. اور اس سائنس کی اصطلاح میں اسے جھوٹوں کو جانچنے کی پرکھ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے زہر پیے، وہ مر جائے گا. ایک جھوٹا شخص قطعاً ایسے امتحان سے گزرنے کی جرت نہیں کرے گا. اگر آپ سچے عیسائی نہیں ہیں تو آپ اسے آزمانے کی کبھی ضرورت نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اگر جھوٹوں کی پرکھ کا آزمائشی تجربہ کریں گے تو ناکام ہوں گے.
तो हर वो शख्स जो कि सच्चा ईसाई नहीं है वो कभी भी ऐसा तजर्बा नहीं करेगा। मैंने किताब पढ़ी कुरान और बाइबल तारीख और साइंस की रोशनी में जो डॉक्टर विलियम कैम्बल ने लिखी। मेरा ख्याल है कि वो एक सच्चे ईसाई मोमिन है, लिहाजा मैं इनसे यह तवक्को रखता हूं कि वो मुझे साबित करें झूठे की परख की आजमाइश के बारे में। मेहरबानी से आप सब आराम से बैठिए, बराए मेहरबानी सुकून रखिए। मैं कतन ये नहीं कहूंगा डॉक्टर विलियम कैम्बल से कि वो जहर पी के दिखाएं, क्योंकि मैं मनाजरे को खतरे में डालना नहीं चाहता। मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ उन्हें यह कहूंगा कि गैर जुबानें बोलें, नई जुबानों में। जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहां हजारों जुबानें और मुकामी बोलियां बोली जाती हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा कि वो ये 3 अल्फाज कह दें, 100 रुपए 17 मुख्तलिफ सरकारी जुबानों में। इंडिया में सिर्फ 17 सरकारी जुबानें हैं। डॉक्टर विलियम कैम्बल की सहूलत और आसानी के लिए मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है और इस पर तमाम 17 सरकारी जुबानें यहां लिखी हुई हैं, इलावा इंग्लिश और हिंदी में। मैं इनकी शुरू में मदद करूंगा। 100 रुपया ये हिंदी में, बाकी 15 जुबानें यहां हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो पढ़ें। मैं जानता हूं कि आजमाइश कहती है वो गैर जुबानें बोलेंगे खुद ब खुद, पढ़ने की जरूरत के बगैर। मैं इम्तिहान को आसान करना चाहता हूं क्योंकि मैं ये इम्तिहान किसी को पास करते हुए देखना चाहता हूं। बस अगर वो ये 3 अल्फाज नहीं बोल सकते, यादाश्त के सहारे सिर्फ पढ़ लें, कोई बात नहीं, मैं कबूल करूंगा। और मैं गुजारिश करूंगा चेयरपर्सन से कि वो डॉक्टर विलियम कैम्बल को दी। ये है उनके इल्जाम का जवाब। 15 जुबानें, 100 रुपया, सिर्फ 3 लफ्ज, जो कि बाइबल ने कहा। इल्मुल मां के मुतालिक बाइबल कहती है पैदाइश की किताब में बाब नंबर 9 आयत नंबर 13 से 17, और फिर खुदा ने कहा नूह के दौर में जब दुनिया तबाह हो गई, दुनिया सैलाब के जरिए और सैलाब खुश्क होने के बाद, उसने कहा मैंने आसमान पर एक कौसे कज़ा नमूदार की तमाम तरबरीन इंसान के साथ, ये वादा किया कि मैं दुनिया को दोबारा गर्क नहीं करूंगा पानी के साथ। साइंस ना जानने वाला शख्स तो इस बात को कबूल कर सकता है, वाह कौसे कज़ा अलामत है खुदा की तरफ से कि वो दुनिया को दोबारा पानी से गर्क नहीं करेगा। आज ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि कौसे कज़ा तो सूरज की रोशनी की वजह से है, बारिश या धुंध की वजह से। यकीनन हजारों कौसे कज़ा गुजर चुकी होंगी नूह अलैहिस्सलाम के दौर से पहले, लेकिन ये कहने के लिए कि नूह अलैहिस्सलाम से पहले ऐसा नहीं था, तो ये गुमान करना पड़ेगा कि कानून इंहिताफ नहीं था, जो कि गैर साइंसी है। अद्वियात के शोबे में बाइबल कहती है अहबार की किताब में बाब नंबर 14 आयत नंबर 49 से 53 तक, ये एक अफसानवी तरीका दिया गया है मर्ज को पाक करने का, घर से, कोढ़ के वबाई मर्ज को, घर को बचाने के लिए कोढ़ के वबाई मर्ज से। उसमें कहा गया कि 2 परिंदे लें, एक परिंदे को मारे, एक लकड़ी लें, सुर्ख कपड़ा और जूफा, और दूसरे जिंदा परिंदे को पानी में डुबोए और बहते हुए पानी को बाद में पूरे घर पर 7 मरतबा छिड़के। क्या मतलब, खून छिड़कना घर पर? तो ये सब किया जा रहा है कोढ़ को भगाने के लिए। आप जानते हैं कि खून तो बजाते खुद एक बैक्टीरिया है, जहरीले मादे जैसा। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर विलियम कैम्बल ये अमल नहीं करते होंगे पाक करने के लिए ओटी को, यानी ऑपरेशन थिएटर। लिखा है अहबार की किताब में बाब नंबर 12 आयत नंबर 1 से 5। और हम सब मेडिकली ये जानते हैं जब मां बच्चा पैदा करती है, जन्म के बाद का दौरानिया को सेहतमंद आना नहीं होता। अगर इसे मजहबी एतबार से नापाक कहें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन अहबार बाब नंबर 2 आयत नंबर 1 से 5 में कहता है जब औरत लड़के को जन्म देती है तो वो तकरीबन 7 दिनों तक नापाक रहेगी और उसकी नापाकी का यह सिलसिला जारी रहेगा 33 दिनों तक मजीद। और अगर वो एक लड़की को जन्म देती है तो वो नापाक रहेगी 2 हफ्तों तक, और नापाकी का दौरानिया जारी रहेगा तकरीबन 66 दिनों तक। मुख्तसरन अगर औरत जन्म देती है एक लड़के को यानी बेटे को, वो 40 दिन तक नापाक रहेंगी। अगर वो जन्म देती है एक लड़की को यानी बेटी को, तो वो 80 दिन तक नापाक रहेंगी। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर विलियम कैम्बल मुझे साइंसी एतबार से बताएं कि किस तरह से एक औरत नापाक रह सकती है दुगनी मुद्दत के लिए अगर वो एक लड़की को जन्म देती है एक लड़के के मुकाबले में। बाइबल में इस हवाले से भी एक बहुत अच्छी आजमाइश है।
जिना के बारे में। कैसे पता चलेगा कि औरत ने जिना किया है? गिनती की किताब में बाब नंबर 5 आयत नंबर 11 ta 31 बताऊंगा तफसील से। यहाँ है कि एक रहबर को चाहिए मुकद्दस पानी ले बर्तन में, फिर फर्श से खाक उठाए और इस पानी में डाल दे, और फिर ये कड़वा पानी, और बद्दुआ के बाद उस औरत को दे दे। और अगर इस औरत ने ज़ना किया होगा तो फिर ये इसको पीने के बाद बद्दुआ अंदर जाएगी उसके जिस्म में, और पेट फूल जाएगा और रान सुकड़ जाएगी, और फिर लोग उस पर लान तान करेंगे। अगर उस औरत ने जिना नहीं किया होगा तो वो सही सलामत रहेगी और अपने हमल को भी महफूज रखेगी। ये अफसानवी तरीका है जो मैंने बताया कि औरत ज़ना की मुर्तकिब हुई है या नहीं। आप जानते हैं आज दुनिया में हजारों मुकदमे इल्तवा में हैं, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, दुनिया के मुख्तलिफ अदालतों में, सिर्फ और सिर्फ इस गुमान पर किसी को ऐसा लगता है कि औरत ज़ना की मुर्तकिब हुई है। मैंने पढ़ा अखबारात में और फिर मुझे मीडिया से पता चला इस अजीम शान मुल्क अमेरिका के सदर मिस्टर बिल क्लिंटन वो शामिल थे एक जिनसी मामले में 2 साल पहले। मैं हैरान हूं कि अमेरिकी अदालत ने क्यों नहीं तल्ख पानी वाला टेस्ट किया ताकि पता चले कि उसने ज़ना किया है या नहीं, तो वो बगैर किसी सजा के फौरन ही बरी हो जाते। क्यों ईसाई तबलीगियों ने ऐसा नहीं किया? इस अजीमो शान मुल्क के, खसूसन वो जो तिब्बी मैदान में है, इज्जत माब जनाब डॉक्टर विलियम कैम्बल की तरह कड़वे पानी का टेस्ट करते ताकि जल्द इस मुल्क के सदर को बरी कराते। इल्म रियाजी इल्म की एक ऐसी शाख है जिसका साइंस के साथ निहायत गहरा ताल्लुक है। इसके जरिए आप कई मसाइल वगैरह हल करते हैं। बाइबल में हजारों तजादात पाए जाते हैं, सैकड़ों रियाजी से मुतल्लिका है। मैं चंद एक का जिक्र करूंगा। अजरा की किताब में लिखा है बाब नंबर 2 आयत नंबर 1, नेहमिया बाब नंबर 7 आयत नंबर 6 में बयान किया है, जब लोग जिलावतनी के बाद बाबुल से वापस आए तो बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने लोगों को इसराइल से आजाद किया था, तो वो महकूमी की हालत में वापस आए और फिर लोगों की फहरिस्त दी गई। ये फहरिस्त अदरा में दी गई है बाब नंबर 2 आयत नंबर 2 से 63 तक, और नेहमिया बाब नंबर 7 और आयत नंबर 7 से लेकर 65 तक फहरिस्त दी गई है नामों के साथ। इसी तरह लोगों के छूटने की तादाद इन कुल 60 हयात में, और यहां पर कम से कम 18 मुकामात में लोगों के नाम तो बिल्कुल वही हैं लेकिन तादाद में फर्क है, और इस तरह कम से कम 18 तजादात पाए जाते हैं इन 2 के 2 बाबों की तमाम तर 60 हयात में। यह है फहरिस्त, बयान करने के लिए वक्त नहीं है, और यहां पर तकरीबन 18 तजादात पाए जाते हैं कम से कम 60 हयात में। लिखा गया है अजरा की किताब में बाब नंबर 2 आयत नंबर 64, पूरी जमात अगर आप जमा करें तो इनकी तादाद बनती है 42,360। और अगर आप पढ़े नेहमिया बाब नंबर 7 में आयत नंबर 66, ये आयात एक जैसी हैं, 42,360। लेकिन अगर आप जमा करें इन तमाम आयात को, जैसा कि मैंने तैयारी की, यह है फहरिस्त, यह है फहरिस्त अजरा की, यह है फहरिस्त नहीमिया की, यह है अजरा बाब नंबर 2, नहीमिया बाब नंबर 7। अगर आप जमा करें जैसा मैंने तैयारी की, अगर आप जमा करें अजरा बाब नंबर 2 से, ये 42,360 नहीं बनती, ये तादाद जाकर बनती है तकरीबन 29,818। और अगर आप जमा करें नहीमिया बाब नंबर 7 और ये भी तादाद 42,360 नहीं बनती, ये बनती है 31,089। सोचिए, बाइबल का मुसन्निफ जैसा कि खुदा को समझा जाता है वो सादा सा जमा का अमल नहीं जानता। अगर किसी प्राइमरी पास शख्स को आप यही सवाल दे दे तो वो भी आपको इसका दुरुस्त जवाब ही देगा। अगर आप जमा करें तमाम 60 हयात को, ये बहुत आसान है खुदा के लिए जो जमा नहीं जानता, नाउज़ुबिल्लाह। अगर हम ये कहते हैं कि ये खुदा के अल्फाज हैं। अगर हम मजीद पढ़ें अजरा बाब नंबर 2 में आयत नंबर 65 कहा गया है वहां 200 गाने वाली मर्द और औरतें थी। नेहमिया बाब नंबर 7 आयत नंबर 67 वहां पर 245 गाने वाली मर्द और औरतें थी। वहां पर 200 या 245 गाने वाली मर्द और औरतें थी। इबारत एक जैसी है। यहां रियाजी का तादाद है। यहां लिखा है दूसरा सलातीन
बाब नंबर 24 आयत नंबर 8, जब यहोयाकीन 18 साल का था जब उसने यरूशलेम पर हुक्मरानी शुरू की और ये हुक्मरानी 3 महीने और 10 दिन तक रही। दूसरा तवारीख बाब नंबर 36 आयत नंबर 9 में है कि यहोयाकीन 8 साल का था जब उसने हुक्मरानी शुरू की और वो 3 महीने और 10 दिन तक रही। यहोयाकीन था 18 साल का जब हुक्मरानी की, या वो 8 साल का था? उसने 3 महीने तक की या उसने 3 महीने 10 दिन तक की? जैसा कि लिखा है पहले सलातीम में बाब नंबर 7 आयत नंबर 26 में है, सुलेमान की इबादत गाह में ढाले गए समंदर में उनके पास 2000 हमाम थे। दूसरे तवारीख में बाब नंबर 4 आयत नंबर 5, उनके पास 3000 हमाम थे। उनके पास 2000 हमाम थे या उनके पास 3000 हमाम थे? ये बात मैं छोड़ता हूं डॉक्टर विलियम कैम्बल पे कि वो क्या कहते हैं। ये रियाजी के हवाले से वाज़ेह तरीन तजादात हैं। इससे हटकर बयान किया गया है पहले सलातीन बाब नंबर 15 आयत नंबर 33 में कि बादशाह मर गया आसा के 26वें साल के दौरे हुकूमत में। और दूसरा तवारीख बाब नंबर 16 आयत नंबर 1 में है कि बादशाह ने जूडा पर हमला किया आसा के 36वें साल के दौरे हुकूमत में। किस तरह से बादशाह हमला कर सकता है मरने के 10 साल बाद? यह गैर साइंसी है। मैं डॉक्टर विलियम कैम्बल की आसानी के लिए उठाए गए एतराजात को दोहराता हूं। मैं इन्हें तफसील से बयान करूंगा जो पॉइंट मैंने बताए हैं। पहला इतराज था कि अर्ज़ो समा की तख्लीक, कायनात की तख्लीक 24 घंटों वाले 6 दिनों में थी। रोशनी अपने मंबा से पहले ही मौजूद थी। दूसरा इतराज। तीसरा, दिन जमीन की तख्लीक से पहले वजूद में आया। चौथा इतराज, जमीन सूरज से पहले वजूद में आई। पांचवा इतराज, सब्जा सूरज की रोशनी से पहले वजूद में आया। छठा इतराज, चांद की रोशनी उसकी अपनी रोशनी है। सातवां इतराज, यह जमीन क्या यह तबाह होगी या यह हमेशा रहेगी? आठवां इतराज, जमीन सुतून रखती है। नौवां इतराज, आसमान सुतून रखता है। 10वां इतराज, खुदा ने कहा तुम तमाम तर पौधे और तमाम सब्जा खा सकते हो जहरीले पौधों समेत। 11वां इतराज, साइंसी आजमाइश, झूठों की आजमाइश का तरीका, मरकज की अंजील बाब नंबर 16 आयत नंबर 17 और 18। 12वां इतराज, एक औरत नापाक रहती है दुगने वक्त तक अगर वो लड़की को जन्म देती है बनिस्बत लड़के के। 13वां इतराज, खून का इस्तेमाल पाक करने के लिए सारे घर को कोढ़ की बीमारी से। 14वां इतराज, आप क्या कहते हैं कड़वे पानी की आजमाइश के मुतालिक जिना के हवाले से। 15वां इतराज, 18 मुख्तलिफ तजादात 60 से भी कम आयात में अदरा बाब नंबर 2 और नहमिया बाब नंबर 7 में। मैंने इन्हें 18 तजादात नहीं गिना बल्कि एक ही शुमार किया है। 16वां इतराज, मजमूई तादाद मुख्तलिफ है दोनों अबवाब में। 17वां इतराज, क्या वो 200 गाने वाले मर्द खवातीन हैं या वो 245 गाने वाले मर्द खवातीन हैं? 18वां इतराज, क्या यहोयाकीन 18 साल का था या कि वो 8 साल का था जब उसने हुकूमत की? 19वां इतराज, उसने 3 महीने हुकूमत की या 3 महीने 10 दिन? 20वां इतराज, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास 3000 हमाम थे या 2000 हमाम थे? 21वां इतराज है कि बादशाह किस तरह हमलावर हुआ जूडा पर अपनी मौत के 10 साल बाद। 22वां इतराज है खुदा ताला ने कहा कि मैंने आसमान में कौसे कदा रखी एक वादे के तौर पर इंसान के लिए कि कभी दुनिया को गर्क नहीं करूंगा पानी के जरिए। मैंने सिर्फ 22 का शुमार किया है। सैकड़ों पाए जाने वाले गैर साइंसी एतराजात जो कि बाइबल में है, साइंसी गलतियां, मेरी इल्तिजा है डॉक्टर विलियम कैम्बल से वो जवाब दें। कतई नजर इसके कि वो इस्तेमाल करते हैं हमांगी का रास्ता या मुखालिफाना तर्ज अमल। जब तक वो मंतक की हदूद में है वो कभी भी सहल नहीं होंगे कि साइंसी तौर पर साबित करें इन 22 एतराजात को जो मैंने उन्हें बताए। हमारा ईमान है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी इंजील, मगर ये वो अंजील नहीं है। हो सकता है कुछ खुदा का कलाम हो लेकिन दूसरा गैर साइंसी हिस्सा खुदा का कलाम नहीं है। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कुरान मजीद की इन चंद आयात पर। सूरतुल बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 79 जो कहती है फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदिहिम,
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسے معمولی قیمت کی عوض بیچتے ہیں. خرابی ہے ان پر جو کچھ انہوں نے لکھا, خرابی ہے ان پر جو کماتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پہلی ڈبیٹ آپ لوگوں نے سنی ڈاکٹر عیسائی کی, اس کے بعد سنی آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر شروع ہوئی ہمیں محسوس ہوگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیت جائیں گے. پہلے 2 الفاظ ڈاکٹر ذاکر نے کہے اسی میں اسے ڈھیر کر دیا. پہلے 2 الفاظ جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہے, قرآن شاعری کی دور میں بھی آگے رہا, انشاءاللہ سائنٹسٹ کے بھی دور میں آگے رہے گا. جیسے آپ نے سنا شعر کی دھاڑ, اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈبیٹ کی. سارا مجموعہ تکبیر سے گونج رہا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کی غلطیوں کو صحیح کیا اور ان کی کتابوں میں 23 غلطیاں نکالی. اور اگلی آپ لوگوں کو پارٹ 3 میں دکھائیں گے ومبل کیمبل اس کا جواب دیتا ہے یا نہیں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.